Hello students, how are you all? In previous class, I was teaching you about features of Protista. Today we continue this topic and we will study about some other features of Protista. Okay, organisms that belong to kingdom Protista. They are known as Protist. Some Protist consist a photosynthetic pigment that is called chlorophyll. Okay, and by the help of chlorophyll pigment, they show photosynthesis process to synthesize their food by themselves. Okay, that's why we can say that these protists will be known as autotrophs. Okay, and I have told you autotrophs are those living organisms that synthesize their food by themselves by the help of a process that is called photosynthesis. Okay, and photosynthesis process takes place in the presence of a green pigment that is called chlorophyll and in the presence of sunlight. Okay, our next topic is mode of nutrition. Okay, there are different types of mode of nutrition that is shown by different protists. Okay, like holozoic mode of nutrition, saprobic mode of nutrition, parasitic mode of nutrition. Okay, our first topic is holozoic mode of nutrition. Amoeba named aquatic organisms show holozoic mode of nutrition. Okay, and in case of holozoic mode of nutrition, amoeba absorb large food particles. Okay, and in the body of amoeba, these large food particles are broken down into the small food particles by the help of digestive enzymes or digestive juice. Okay, this type of mode of nutrition is known as holozoic mode of nutrition, in which large food particles are broken down into the small food particles. Okay, and amoeba takes nourishment by depending on these small food particles. Okay, तो आप समझें कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह कहलाएगा बेटा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, इवन जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि हम लोग भी बेटा क्या लार्ज फूड पार्टिकल्स यूज करते हैं ना, और इन द आवर बॉडी large food particles are broken down into the small food particles by the help of different kinds of enzymes. Okay, तो हम भी क्या शो करते हैं, holozoic mode of nutrition. Okay, second topic is saprobic mode of nutrition. Some protists live on decaying organic matters for getting nourishment. Okay, this type of mode of nutrition is known as saprobic mode of nutrition. Okay, third is parasitic mode of nutrition. Some protists like plasmodium. Okay, plasmodium is an example of endoparasites. Okay, and plasmodium show parasitic mode of nutrition. ठीक है, ये जो plasmodium parasite है बेटा, it causes one protozoan disease that is called malaria. Okay, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि when plasmodium enters into the body, ठीक है, जैसे अब हमारी बॉडी में अगर plasmodium एंटर हो जाता है, it enters into the liver cell. Okay, and in the liver cell it gets nourishment. ठीक है, तो उस तरह का जो mode of nutrition है, it will be known as parasitic mode of nutrition. ठीक है, कि प्लाज्मोडियम पहले होस्ट बॉडी के अंदर एंटर हुआ, होस्ट सेल्स में एंटर हुआ, ठीक है, फॉर गेटिंग नरिशमेंट. ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स बोलेंगे. ठीक है, प्लाज्मोडियम को, और क्या बोल देंगे कि भाई वो क्या शो कर रहा है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, our next topic is reproduction in protist. Protists show two types of reproduction. First is sexual reproduction and second is sexual reproduction. Okay, there are different types of asexual reproduction like binary fission, multiple fission, plasmotomy, budding and spore formation. Okay, our first topic is binary fission. Amoeba named aquatic organisms show binary fission. In case of binary fission, parental cell of amoeba splits into two new daughter cell. This type of asexual reproduction is known as binary fission. ठीक है, लेकिन आप समझें, in case of binary fission both process also takes place like karyokinesis and cytokinesis. Okay, cytokinesis means division of cytoplasm. Okay, and karyokinesis means division of nucleus. Okay, before cytokinesis
कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ओके ड्यूरिंग बाइनरी फिजन, कि जो सिंगल पेरेंटल सेल है बेटा अमीबा की, ठीक है, उसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ठीक है, एंड आफ्टर दिस साइटोकाइनेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू डॉटर सेल्स ओके। तो क्या बोला ऐसे अपन ने, बाइनरी फिजन, हियर बाई मीन्स 2, ये बताया था पहले भी आपको मैंने, ठीक है, बाई मीन्स 2 एंड फिजी मीन्स ब्रेक डाउन, ठीक है, कि वन सिंगल पेरेंटल सेल स्प्लिट और डिवाइड्स इनटू 2 न्यू डॉटर सेल्स ओके। बट लेकिन इतना आप ध्यान रखना कि इन केस ऑफ बाइनरी फिजन बोथ प्रोसेस ऑल्सो टेक्स प्लेस, फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस and second cytokinesis division of cytoplasm okay. Our next topic is multiple fission. Plasmodium named Plasmodium named Protista, हालांकि प्रोटोजोआ के अंदर ही आ गया बेटा वो, ठीक है, क्योंकि प्रोटोजोआ बिलोंग करते हैं किससे, किंगडम प्रोटिस्टा से, ठीक है। तो जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम शो मल्टीपल फिजन ओके। अब क्या होगा बेटा इन केस ऑफ मल्टीपल फिजन, कि सिंगल जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, दिस सिंगल न्यूक्लियस स्प्लिट और डिवाइड्स एंड फॉर्म मैनी न्यूक्लियाई ओके। व्हेन ईच न्यूक्लियाई इज सराउंडेड बाय द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म देन इट विल बी नोन एज स्पोर्स ओके। अब आप देख लीजिए कितने स्पोर्स बन गए आफ्टर डिवीजन ऑफ सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है, कि सिंगल न्यूक्लियस है, इट डिवाइड्स मल्टीपल टाइम्स टू फॉर्म स्पोर्स ओके, and these spores are surrounded by the help of an outer protective layer that is called cyst. The formation of cyst, it is called incystation okay. In a favorable condition, when cyst burst, then each spore comes out and produces new individual. This type of asexual reproduction is known as multiple fission. समझे आप इस चीज को, ठीक है, कि जैसे देखो बताया था अभी आपको मैंने कि प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है, मलेरियल डिजीज कॉज करता है, ठीक है। जैसे प्लाज्मोडियम बेटा एंटर होता है इनटू द लिवर सेल, इट शो मल्टीपल फिजन ओके। वो बताया अभी मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि जो सिंगल न्यूक्लियस होता है इन अ सिंगल पेरेंटल सेल, इट डिवाइड्स मल्टीपल टाइम्स ओके and form many nuclei. When each nuclei is surrounded by the help of cytoplasm, then it will be known as spore okay. Due to this many spores are produced okay, and these spores are surrounded by the help of cyst. When cyst burst, then each spore comes out and produces new individuals okay. इसी को हमने बोला है मल्टीपल फिजन। एंड फॉर योर कैन इंफॉर्मेशन, स्पोर is known as a sexual body that gives rise to new individuals, ठीक है, क्या कहलाता है ये स्पोर, a sexual body that gives rise to new individuals, ठीक है। Our next topic is plasmotomy okay. Oplina named Protist show plasmotomy okay. अब देखें क्या हो रहा है प्लाज्मोटोमी के अंदर, fission of multinucleate protist into 2 or more than 2 multinucleate offsprings by the division of cytoplasm without nuclear division okay. This type of asexual reproduction is known as plasmotomy, ठीक है। समझे दोबारा क्या बोला है मैंने कि इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है बेटा, ब्रेक डाउन ऑफ मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटिस्ट इनटू 2 or more than 2 multinucleate offsprings by the division of cytoplasm without division of nucleus, ठीक है, विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। और क्या बनते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं, लेकिन कौन शो करता है इसको, ओप्लिना। और नेक्स्ट टॉपिक इज बडिंग। बडिंग प्रोसेस इज शोन बाय आर्सेला नेम्ड प्रोटिस्ट। इन केस ऑफ बडिंग प्रोसेस ए स्मॉल बर्ड इज फॉर्म्ड ऑन द पेरेंटल बॉडी, ठीक है, एक पेरेंटल बॉडी के ऊपर बर्ड बन जाती है एंड बर्ड इज ऑल्सो नोन एज ए सेक्सुअल बॉडी ओके। ऑन पेरेंटल बॉडी a bird is formed okay, and when this bird separates then it develops into new individuals, ठीक है, कि जैसे ये पेरेंटल बॉडी है, इस पेरेंटल बॉडी पर क्या बन गई, ये बर्ड्स बन गई, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि when bird separate then this bird produces new individuals okay. This type of asexual reproduction is known as budding okay. Our next topic is spore formation okay.
some protist like slime mold, okay, slime mold show a sexual reproduction by the help of spore formation, ठीक है. in case of slime molds, ठीक है, slime molds contain spores in sporangia. स्पोरेंजिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट बॉडी, जिसके अंदर क्या होता है बेटा, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. अब क्या होगा, इन फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम वेसिकल्स. क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम वेसिकल्स, ठीक है. इन फेवरेबल कंडीशन व्हेन स्पोरेंजियम वेसिकल बर्स्ट, ठीक है, जैसे टूट गई है ना, ये बर्स्ट हो गई है, देन स्पोर्स कम्स आउट, ओके, एंड ईच स्पोर प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल्स. क्यों बताया था जस्ट आपको मैंने कि जो स्पोर्स होते हैं बेटा वो क्या कहलाते हैं, एसेक्सुअल बॉडी, ठीक है. तो ये जो टाइप है एसेक्सुअल प्रोडक्शन का, इट इज नोन एज स्पोर फॉर्मेशन, ओके. अब हम पढ़ेंगे about sexual reproduction, okay. some protists also show sexual reproduction, okay, and sexual production involves meiosis, cell division and syngamy, okay. first of all we should know that what's the mean of your meiosis, cell division. For your kind information, there are two types of cell division, mitosis cell division and meiosis cell division, ठीक है. तीन तरह का होता है बेटा ये, amitosis, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है. डीपली स्टडी हम करेंगे बेटा चैप्टर 9 के अंदर. अभी आप समझ लें कि व्हाट द मीन ऑफ योर मियोसिस सेल डिवीजन, ओके. फॉर योर कैन इन्फॉर्मेशन, मियोसिस सेल डिवीजन टेक्स पार्ट टू प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स, ओके, एंड दीज मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स टेक्स पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, ठीक है. कि जो मेल सेक्स सेल और जो फीमेल सेक्स सेल होती है, ठीक है, ये दोनों फ्यूज होती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड दे फॉर्म जाइगोट. बट वी शुड नो दैट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, meiosis cell division play major role for the formation of gametes like male gametes and female gametes. These male and female gametes are also known as male or female sex cells, ठीक है. समझ रहे हैं आप इस चीज को, ये हर किसी के अंदर, ठीक है, कि जितनी भी जो सेक्स सेल्स होती है ना बेटा, ठीक है, सेक्स सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन, ओके. फिर उसके बाद क्या होगा कि जब मेल और फीमेल जब सेक्स सेल्स बन जाएंगी बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन, देन these both male and female sex cells fuse with each other to form zygote. This process is known as syngamy, okay. सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन, ठीक है. लेकिन आपको अब ये जानना है कि मियोसिस में क्या होता है मेनली, ठीक है. देखो होता क्या है बेटा, मियोसिस सेल डिवीजन इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन सेल डिवीजन, इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ्स इन न्यू डॉटर सेल्स, ठीक है. कि जैसे कोई एक पेरेंटल सेक्स सेल है ये, ठीक है. अब इस पेरेंटल सेल्स में 14 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है. तो इस पेरेंटल सेल से देखो, अच्छा ये भी सुन लेना, मियोसिस सेल डिवीजन दो तरह का होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड. तो मियोसिस फर्स्ट में ये दो डॉटर सेल्स बनी हैं, फिर मियोसिस सेकंड में इन दो डॉटर सेल से कितनी बन जाएंगी बेटा, 4 सेल्स बन जाएंगी, ठीक है. अब जो ये 4 सेल्स बनी है बेटा, इनको मैं बोलूंगा हैप्लॉइड. क्या नाम दूंगा बेटा, हैप्लॉइड, ठीक है. बिकॉज दे कंसिस्ट सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है. अब इसको आप देख रहे हैं, ये सेल तो कहलाएगी डिप्लॉइड सेल्स, डिप्लॉइड सेल, दैट इज नोन एज पेरेंटल सेल्स, ओके. एंड डिप्लॉइड सेल कंसिस्ट डबल सेट क्रोमोसोम्स, ठीक है. कितने थे, 14 थे. फिर मैंने बोला है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड. मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ कि जो सिंगल पेरेंटल सेल है इट डिवाइड्स एंड फॉर्म 2 न्यू डॉटर सेल्स. फिर चलेगा मियोसिस सेकंड सेल डिवीजन, इसमें 2 से 4 सेल्स बन जाएंगी. अब जो ये 4 सेल्स बनी है बेटा, ये मेल सेक्स सेल भी हो सकती हैं या फीमेल सेक्स सेल भी हो सकती हैं, ठीक है. लेकिन ये क्या होंगी सारी हैप्लॉइड, दे कंसिस्ट सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है. और इन दीज न्यू डॉटर सेल्स द क्रोमोसोम्स नंबर बिकम हाफ, कि जो 14 क्रोमोसोम्स थे अब इनके अंदर कितना हो जाएगा बेटा, 7 7 7 7, ठीक है. इनके अंदर क्रोमोसोम्स नंबर आधे हो जाते हैं फ्रॉम पेरेंटल सेल्स, ठीक है. जितने पेरेंटल सेल्स में होते हैं उसके आधे क्रोमोसोम्स होंगे इन
न्यू डॉटर सेल्स में दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ म्योसिस सेकंड सेल डिवीजन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब बात चल रही है अपनी कि सेक्सुअल प्रोडक्शन अकर्स थ्रू आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, आइसोगैमी के अंदर द सिमिलर गैमेट्स दैट आर सिमिलर ऑन द बेसिस ऑफ size, okay, similar gametes like male gametes or female gametes fuse to form zygote, okay। अब बात चल रही है अपनी एन आइसोगैमी की। ठीक है, एन आइसोगैमी क्या होता है कि द टू फ्यूजिंग गैमेट्स सिमिलर बट डिफर ओनली इन देयर साइज। ठीक है, अगर वो गैमेट्स सिमिलर हैं, ठीक है, बट दे डिफर ओनली इन देयर साइज। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एन आइसोगैमी। ठीक है, और एन आइसोगैमी कौन शो कर रहा है, सेरेटियम नेम्ड प्रोटिस्ट, ओके। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऊगैमी। ठीक है, ऊगैमी इज शोन बाय प्लाज्मोडियम नेम्ड प्रोटिस्ट, ओके। और इन केस ऑफ ऊगैमी लार्ज नॉन मोटाइल गैमेट जो फीमेल गैमेट्स होते हैं आर फर्टिलाइज्ड बाय स्मॉलर मोटाइल गैमेट्स दैट इज मेल गैमेट्स। ठीक है, कि जो लार्ज है वो तो कौन है, फीमेल गैमेट्स है, जो नॉन मोटाइल है। ठीक है, ये, और जो स्मॉल है लेकिन मोटाइल है वो क्या है, मेल गैमेट्स। ठीक है, ये फीमेल गैमेट्स, ये मेल गैमेट्स। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ऊगैमी प्रोसेस, जिसमें बताया ना अभी आपको मैंने कि लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट्स है और नॉन मोटाइल स्मॉल कौन है, मेल गैमेट्स। ठीक है, ये दोनों फ्यूज होंगे आपस में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ओके। बट हियर द नेम ऑफ जाइगोट विल बी ऊकेनेट। क्या नाम होगा बेटा, ऊकेनेट। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं प्रोटिस्ट आर डिवाइडेड इनटू क्राइसोफाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोअन्स, यूग्लिनोइड्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स, ओके। और फर्स्ट टॉपिक इज क्राइसोफाइट्स। ठीक है, क्राइसोफाइट ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। ठीक है, कि जो क्राइसोफाइट ग्रुप है, ठीक है, और ये किसके अंदर आ रहा है ग्रुप बेटा, प्रोटिस्टा के अंदर। It includes diatoms and golden algae, okay। Diatoms are unicellular photosynthetic organisms, okay। They have different shape like circular, triangular, spindle and half moon shaped, okay। ये भी आप समझिए इस चीज को। तो बात चल रही है अपने बेटा कि जो ये डायटम्स होते हैं दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड इन मेनाइन सॉल्टी वाटर, ओके। Most of the diatoms occurs as phytoplanktons both in fresh and marine water। ठीक है, some are terrestrial and grow on moist soil, okay। Diatoms are कह सकते हैं कि भाई ये एक तरह से फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स आर स्मॉल एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, फिर बात चल रही है अपनी द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ टू ओवरलैपिंग हाफ्स दैट इज कॉल्ड थीका। ठीक है, जैसे एक सोप बॉक्स होता है ना, सोप बॉक्स में दो कवरिंग होती है, अपर कवरिंग और लोअर कवरिंग। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जो ये दो हाफ है, ठीक है, बताया ना अभी, टू ओवरलैपिंग हाफ, जिनको क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दैट फिट टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स। ठीक है, द अपर हाफ इज नोन एज एपिथीका एंड लोअर हाफ इज नोन एज हाइपोथीका। जिस तरह वो होती है ना सोप बॉक्स में जैसे एक तो ये रीजन है और एक लोअर रीजन है। ठीक है, तो ये तो क्या कहलाएगा, हाइपोथीका। ठीक है, और अपर रीजन क्या कहलाएगा, एपिथीका। ठीक है, समझे आप इसे। रिजर्व फूड मटेरियल इन दीज ऑर्गेनिजम्स इज ऑयल एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ये रिजर्व फूड मटेरियल से बेटा इनके अंदर। अब हम बात कर रहे हैं, और जो ऑयल एंड पॉलीसैकेराइड्स है ना बेटा, इसको हम क्या बोल देंगे, क्राइसोलैमिनेरियन और ल्यूकोसिन। ठीक है, अब इसमें क्या है, द सेल वॉल। ठीक है, जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ बाई सेलुलोज एंड सिलिका। आप इतना ध्यान रखें, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका इन ए सेल वॉल द वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल। ठीक है, यानी कि इट डज नॉट डिके इजीली। समझना क्या बोला मैंने आपको कि द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ बाई सेलुलोज एंड सिलिका, and I have told you due to presence of silica in cell wall
द वॉल्स आर इंडस्ट्रिकेबल, ठीक है, यानी कि भाई इट डज नॉट डिके इजीली, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं आपको यहाँ पर इंडस्ट्रक्टिबल, ठीक है, कि डज नॉट डिके इजीली, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं कि डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिट्स, ठीक है। और फिर बात चल रही है अपनी कि जब लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिट्स, दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रेफर्ड टू एज डायटोमियस अर्थ, ठीक है। फिर जैसे जब ये अपनी सेल वॉल को काफी लंबे टाइम तक छोड़ता रहेगा, ठीक है, डायटम्स, ठीक है, ऑन द अर्थ, तो वो अर्थ क्या कहलाएगी, डाइएटोमेसियस अर्थ, ठीक है। अब इसको समझिए आप, नोट बीइंग ग्रिटी, जब सोइल क्रिकरी हो जाएगी, ठीक है, बीइंग ग्रिटी, दिस सोइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स, ठीक है, कि जब वो जो इसकी सेल वॉल है जब मिक्स हो जाएगी सोइल के अंदर, तो सोइल कैसे जाएगी बेटा, ग्रिटी, कहते हैं ना किरकिरा हो जाना किसी चीज का, ठीक है, बीइंग ग्रिटी, जब सोइल किरकिरी हो जाएगी, दिस सोइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ सोइल एंड सिरप्स, ओके। लेकिन आपसे कोई पूछे भाई किरकिरी कैसे हुई है सोइल, तो आप बताएंगे लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिट्स, कि जहां पर ये रहती हैं, ठीक है, जहां पर ये ऑर्गेनिम्स रहते हैं, तो वहां पर क्या छोड़ देते हैं, ये सेल वॉल, और इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज एंड सिलिका, समझ रहे हैं आप इस चीज को, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक डाइनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है। चलो उससे पहले एक और आप देख लीजिए, ठीक है, कि द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ मल्टीप्लेक्शन इज बाइनरी फिजन। अगर आपसे कोई पूछते हैं कि जो ये ऑर्गेनिम्स होते हैं, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन किस तरह शो करते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि बाइनरी फिजन से, ठीक है, दे शो रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, एंड इन सम डाइएटम्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ओके। फिर हम बात करें डाइनोफ्लैजेलेट्स की। मोस्टली डाइनोफ्लैजेलेट्स आर मैराइन, दे आर यूनिसेलुलर एंड गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, ओके। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैराइन होते हैं, ये समझे आप इस चीज को, ठीक है। और मेनली है आप समझे, दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स दैट प्रेजेंट इन देयर सेल्स, ठीक है। और इनका जो अलग अलग कलर होता है ना बेटा, इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स दैट प्रेजेंट इन देयर सेल्स, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ डाइनोफ्लैजेलेट इज कंपोज्ड ऑफ ए नंबर ऑफ प्लेट्स दैट इज कॉल्ड सेलुलोज, ओके, ठीक है। और जो सेलुलोज है बेटा, इट इज ऑल्सो नोन है, इट इज कॉल्ड थीका, ठीक है, क्या कहलाता है, ये थीका कहलाता है, ठीक है। सेल पजेज टू फ्लैजिला, अब आप देख रहे हैं कि ये दो फ्लैजिला होते हैं, एक तो ट्रांसवर्सली फ्लैजिला और एक लॉन्गिट्यूडनली फ्लैजिलम, ठीक है। और आपको पता है कि बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिलम दे शो लोकोमोशन, ठीक है। कुछ होती है रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स लाइक गोनी ओलेक्स ग्रो ओवर द सी सरफेस दैट मेक द सी अपीयर रेड, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स द सरफेस ऑफ सी बिकम्स रेड, ओके। फिर हम बात कर रहे हैं सम डाइनोफ्लैजेलेट्स सच एज गोनी ओलेक्स, बताया ना अभी आपको मैंने, व्हेन ग्रो इन लार्ज नंबर्स दे रिलीज ए टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू द वाटर, and this toxic substance are poisonous, okay, and it kill large number of marine animals, ये भी आपको समझना है, ठीक है, कि जो ये रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स होता है, it secretes some toxic substances into the water, and in the presence of this toxic substances other aquatic animals kill, okay। फिर हम बात करें रिजर्व फूड मटेरियल्स की, ठीक है, जो रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है, वो कौन सा होगा, स्टार्च, डाइनोफ्लैजेलेट्स के अंदर ना स्टार्च और ऑयल। डाइनोफ्लैजेलेट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द हेल्प ऑफ जू स्पोर्स आर नोन एज मोटाइल asexual bodies, okay, they play major role in asexual reproduction to produce new individuals, okay। Next topic is sexual reproduction. Sexual reproduction is also shown by dinoflagellates, okay, and there are two
ways of a sexual reproductions like isogamous and anisogamous. बताया था अभी आपको मैंने, isogamous के अंदर similar gametes fuses with each other to form zygote, okay, and in case of anisogamous, ठीक है, similar gametes but they differ on the basis of their size, okay, कि वो फ्यूज होते हैं टू फॉर्म जाइगोट, बट दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज एन आइसोगैमी और एन आइसोगैमस, ओके. In the next class, we will study about euglenoids. Okay, thank you.